Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. So, myself Budresh Kathar and I am your maths teacher. So, let's start the pray before we start the lecture. Okay? So, close your eyes and start with me. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Para Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, so after this prayer we are going for the exercise. It's good for us. Okay, so first of all we are rub the hands and put it on your eyes and cheeks. Okay, so हमें hands को rub करना है और अपने eyes and cheeks पे रखना है. Okay, so it's 3 times compulsory for all. Okay, and then after you have to do the hand exercise. It's also compulsory. So straight your hands and move your hands. Okay. After this we are going for the lecture. Okay, so let's start the lecture. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. Myself Budresh Kathar and I am your maths teacher. So today we are going for the revision sheet, chapter number 11, money. But before we start the chapter number 11, we have to quick revise the chapter number 10, time. Okay, so what is the time? In our daily life we are using the time to see the whole management of the day. Okay, हम अपने पूरे डे को शेड्यूल करने के लिए टाइम को देखते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारी जो वॉच होती है वो डिफरेंट टाइप की वॉचेस होती हैं. हमने देखा डिजिटल वॉच, देन आफ्टर एनालॉग वॉच. ओके, सो वॉच के अंदर हम टाइम को किस तरह से देखते हैं. ओके, जनरली वहाँ पे 12 नंबर्स एंड 3 हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड आवर हैंड. ओके, सो व्हेन the big hand means minute hand is moved to 15 minutes more, then we have to set the quarter past. And when it's a move 30 minutes, it's called half past. And when it's move 45 minutes, we can say the quarter to. Okay, so हमने रिवीजन शीट के अंदर यहाँ पे बहुत सारे टाइम्स देखे थे. AM PM, आफ्टरनून AM to afternoon PM to means 12 o'clock to night 12 o'clock we are saying the PM, and night 12 o'clock to afternoon 12 o'clock we have to say the AM. Okay, then after we have to see the more exercises like this. Okay, so I think आप सबने ये complete कर लिया होगा. And now we are going for the chapter number 11, money. Okay, so the chapter name is money. Okay, so first of all there is a exercise question number 1. Write the amounts of money so by the notes and coins. तो आप सभी को मनी के बारे में तो पता होगा. मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. सो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे नोट्स को आइडेंटिफाई करना है एंड टोटल करना है और यहाँ पे हमें लिखना है. वेरी सिंपल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ 100 नोट. ये जो है हमारी वो 100 रुपीज़ नोट है. देन आफ्टर 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ नोट, 2 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन एंड 20 रुपीज़ नोट. ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो जो भी हमारे पास है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 100 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 20. तो हमें उसके इक्वल टू यहाँ पे लिखना है कि हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ है. सो हम इसे इजीली ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जो इजी नंबर्स हैं जैसे कि यहाँ पे 100, देन आफ्टर यहाँ पे 20 एंड 10 है, मीन्स 20 एंड 10 कितना हुआ 30. तो यहाँ पे हम 30 लिख लेते हैं. देन आफ्टर 5 प्लस 1 6 plus 2 there is a 8. So 5 plus 2 there is a 7 and 7 plus 1 there is a 8. तो हम यहाँ पे 8 लिख लेते हैं ताकि हमें एडिशन करना बहुत ही इजी हो जाए. आप 100 then after 5 then after 10 then after 2 then after 1 then after 20 इससे ऐड करने जाओगे तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा. जैसे कि है नहीं
बट आपको लग सकता है। बट हम इस तरह से इजीली हम इसे ऐड करेंगे तो आप फास्टली भी कर पाओगे और इजी भी हो जाएगा। ओके, मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले तो 100, देन आफ्टर 10 + 20 इज इक्वल टू 30, then after 5 + 2 7 + 1 there is a 8. Okay, now we have to add, so there is a 8, 3 and 1, so there is a total 138 rupees। यहाँ पे रुपीस का सिंबल करना ज़रूरी है। ओके, सो ये हमारे पास 138 रुपीस है। ओके, सो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 1 रुपी कॉइन एंड 200 रुपीज़ नोट। तो आपको इस तरह से यहाँ पे करना है। ओके, तो ये आपको होमवर्क के अंदर करना है। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 रुपीज़ नोट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2000 रुपीज़ प्लस देयर इज अ 500। ओके, सो देयर इज अ 500, then after there is a 1 rupee। so what is the answer? तो यहाँ पे हमें कितने रुपीज़ मिले हैं, 2501। so 2501। so हमारे पास यहाँ पे टोटल रुपीज़ है। ओके, सो 2501 इज द आंसर। ओके, सो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है। 5 में यहाँ पे डन कर देता हूँ। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 100 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 रुपीज़ प्लस अगेन देयर इज अ 100 रुपीज़ नोट, सो अगेन 100 रुपीज़ प्लस देयर इज अ 500 रुपीज़ नोट, so there is a 500 rupees note plus there is a 200 rupees note, then after there is a 5 rupee coin and 2 rupees coin, 5 rupees coin and 2 rupees coin। ओके, सो हमें यहाँ पे रुपीज़ फाइंड आउट करने हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है, बट हमें स्मार्टली टोटल करना है। ओके, हमें एडिशन तो आते हैं बट स्मार्टली हम किस तरह से करेंगे। सो लेट्स सी, 100 + 100 इज़ अ 200 और यहाँ पर भी 200 है। सो 200 + 200 400, तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं 400 प्लस यहाँ पे 500 ऑलरेडी है तो हम वो यहाँ पे 500 लिख लेते हैं। नाउ 5 + 2 दैट इज़ अ 7, सो हमने यहाँ पे 7 भी लिख लिया। नाउ वी हैव टू ऐड द नंबर्स, सो 7 एज इट इज़, यहाँ पे 0 भी यहाँ पे एज इट इज़, एंड 5 + 4 देयर इज़ अ 9, so 907 rupees is the answer। okay, so is that the answer? okay, then after do as directed, तो हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है और पिक्चर के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको केयरफुली पिक्चर को देखना है, ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे जो प्राइजेस दी गई है वो आपको प्रॉपरली देखनी है। ओके, सो मैं 1 बाय 1 आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरह से हमारी प्राइजेस हैं। ओके, आई थिंक यहाँ पे बॉल्स है जो उसकी प्राइस 7 रुपीज़ है, ईच बॉल है वो प्राइस 7 रुपीज़। देन आफ्टर यहाँ पे 2 रुपीज़, 15 रुपीज़, देन आफ्टर यहाँ पे 6.50 रुपीज़, 8 रुपीज़, देन आफ्टर 5 रुपीज़। यहाँ पे नोट्स की प्राइस 5 रुपीज़ है, ये जो टॉयज़ है उसकी प्राइस 8 रुपीज़ है। हर एक पिक्चर के नीचे उसकी प्राइसिंग दी गई है। सो ओके, देन आफ्टर 5 रुपीज़ पर नोटबुक, देन आफ्टर यहाँ पे 2.50, यहाँ पे 2.50 है, देन आफ्टर 1 रुपीज़ 0.50 पैसा, देन आफ्टर 4.50 पैसा, 1.50 पैसा, 3.50 पैसा पर ग्लास एंड 3 रुपीज़ पर ग्लास। ओके, सो ये हमारी इंफॉर्मेशंस है एंड वी हैव टू गिव द आंसर। सो हमारे जो आंसर्स है वो आप 2 तरीके से दे सकते हो। फर्स्ट वन, विदाउट यूजिंग द पेंसिल एंड पेपर। उसका मतलब क्या है कि आप दिमाग में सोचो कि इसका आंसर क्या होगा और दिमाग के अंदर इसका एडिशन करो। ओके, सो फर्स्ट हमारी मेथड ये है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आप अपने सिंपल मेथड से भी कर सकते हो। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1, one toy
जिराफ एंड 1 कॉपी एंड अ ग्लास ऑफ लेमन जूस रुपीज़। तो हमें यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिफाई करना होगा? तो यहाँ पे पहले तो जिराफ की प्राइस, तो जिराफ की प्राइस क्या है? 6.50 रुपीज़ पर जिराफ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रफ वर्क में। आप अपनी नोटबुक के अंदर कहीं और भी लिख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6.50। यहाँ पे 2 है बट ईच प्राइस इज अ 6.50 रुपीज़। देन आफ्टर 1 कॉपी, सो 1 कॉपी मीन्स 1 नोटबुक, कॉपी हम हिंदी में बोलते हैं। सो यहाँ पे 5 रुपीज़ पर नोट, सो देर इज़ अ 5 रुपीज़। ओके, इस तरह से हम 5 रुपीज़ लिखते हैं बिकॉज ये हमारा पैसे वाला सेक्शन है और ये हमारा रुपीज़ वाला सेक्शन है। ओके, देन आफ्टर अ ग्लास ऑफ लेमन जूस, लेमन जूस का जो ग्लास है उसकी प्राइसिंग यहाँ पे क्या है? सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो लेमन जूस यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी प्राइसिंग है 3 रुपीज़ पर ग्लास। तो हमें यहाँ पे 1 ग्लास ही दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 रुपीज़। ओके, एंड नाउ वी हैव टू ऐड दिस वन। सो 0, 5, जो हमारा ये डॉट है वो एज इट इज। देन आफ्टर 6 + 5 देर इज अ 11 एंड 11 + 3 देर इज अ 14। ओके, सो 14 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा 14 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो हमारा ये फर्स्ट आंसर यहाँ पे है। हमें सिर्फ पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे जो प्राइसिंग लिखी हुई है वही देखना है। ओके, यहाँ पे थोड़ा दिखने में थोड़ा दिक्कत होगा बिकॉज ऑफ द लो प्रिंट। तो आप यहाँ पे मैंने जो बोला है वो आप एक बार ज़रूर देख लेना वीडियो को रिवर्स करके, जो प्राइसिंग्स है वो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट्स एंड बनाना। तो हमें यहाँ पे पहले देखना है ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे जो मिल्क है उसकी प्राइस है 3.50 रुपीज़, 3.50 रुपीज़। देन आफ्टर 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, तो यहाँ पे बिस्किट्स कहाँ पे है? सो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 रुपीज़ एंड 50 पैसा पर पैकेट। तो यहाँ पे जो पैकेट्स है उसकी प्राइस है 4.50 रुपीज़। ये जो हमारे क्वेश्चन है वो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है, तो आप ये प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। ओके, देन आफ्टर एंड अ बनाना, तो यहाँ पे 1 बनाना, सो यहाँ पे 1.50 रुपीज़, 1.50 रुपीज़ ईच बनाना। ओके, सो 1.50। मैं अपना रफ वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक के अंदर अलग से कर सकते हो। ओके, नाउ वी हैव टू टोटल दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल 0, 5 + 5 10 + 5 15, सो 5 and 1 कैरी आउट। पॉइंट हमारा एज इट इज़, ये जो पॉइंट है वो क्या है हमारा? रुपीज़ एंड पैसे को डिवाइड कर देता है, वो दोनों अलग अलग कर देता है। इस तरफ जो होता है वो हमारा रुपीज़ होता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे रुपीज़ होते हैं एंड राइट हैंड साइड हमारे पैसे होते हैं। ओके, 3 + 1 4, 4 + 4 8 and 8 + 1 9, सो 9 रुपी एंड 50 पैसा। तो हमारा आंसर है यहाँ पे 9 रुपी एंड 50 पैसा। सो यहाँ पे हमारा आंसर हम लिख देते हैं। ओके, 9.50। ओके, सो इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आपको होमवर्क के अंदर करना है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर B, व्हाट कैन यू बाई इफ़ यू हैव अ 20 रुपीज़ नोट। हमारे पास अगर 20 रुपीज़ की नोट होती तो हम इसमें से क्या बाय करते? तो वो आपको यहाँ पे लिखना है ऑब्जर्वेशन करके। आप यहाँ पे क्या चाहते हो? जैसे कि यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, तो यहाँ से आप जिराफ खरीदोगे, यहाँ पे आप कोई टॉय खरीदोगे, यहाँ से बॉल खरीदोगे, यहाँ से टॉप खरीदोगे, कार टॉय खरीदोगे, क्या खरीदोगे? तो आपको टोटल 20 रुपीज़ दिए गए हैं, तो 20 रुपीज़ का यहाँ पे आपको खर्च करना है। सोच लो कि आपकी पॉकेट मनी 20 रुपीज़ है और आपको इसमें से कुछ खरीदना है, तो आप क्या क्या खरीदोगे उसका यहाँ पे लिस्ट बनाना है। ओके, सो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने ये लिखा है तो हमें भी यही लिखना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखोगे। ओके, और मैं जब आपको सॉल्यूशन दूंगा तब यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से लिखूँगा, तो आपको अपने हिसाब से लिखना है टोटल 20 रुपीज़ का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ कैश मेमो मिनिमम 5 आइटम्स। ओके, तो ये हमारी एक्टिविटी है।
सो एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है, पहले तो कैश मेमो क्या होता है आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो कैश मेमो क्या होता है, जब भी आप शॉप पे जाते हो, व्हेन यू गो टू द शॉप टू विजिट बाय एनीथिंग, ग्रोसरीज, देन आफ्टर एनीथिंग एल्स, तो आप उसका एक बिल लेते हो। तो जो बिल होता है उसे ही हम कहते हैं कैश मेमो। आप अपने कैश देते हो शॉपकीपर को, तो वो आपको एक बिल बना के देता है। सो इट्स कॉल्ड मेमो, कैश मेमो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है एक्टिविटी के अंदर, आप जब भी कुछ शॉपिंग करने के लिए जाओ या फिर आप अपनी मॉम डैड के साथ जाओ, तो वहाँ पे क्या शॉपिंग हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे कोई टॉय कार खरीदी है, आपने यहाँ पे एक टॉय कार खरीदी है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ, आपको ये नहीं लिखना है, आपको अपना लिखना है। जो आप मिनिमम 5 आइटम्स को बाय करते हो लास्ट 1 मंथ के अंदर या फिर रिसेंटली, तो उसे यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आइटम सेक्शन है, तो यहाँ पे आप आइटम्स लिखोगे जो भी आप खरीदोगे। नाउ रेट पर प्राइस मतलब पर आइटम, तो यहाँ पे आपने कितने टॉय खरीदे, तो आपने यहाँ पे 1 टॉय खरीदा है, तो यहाँ पे पर रेट क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 35 रुपीज़ है। ओके, यहाँ पे प्राइस क्या है 35 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल कितने रुपीज़ हुए हैं, तो यहाँ पर भी टोटल 35 रुपीज़ हुए। ओके, और यहाँ पे पैसे, तो यहाँ पे पैसे 00 है, तो आप यहाँ पे 00 लिख सकते हैं। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बुक खरीदी, मैंने यहाँ पे बुक खरीदी, बट यहाँ पे मैंने 2 बुक्स खरीदी, तो पर बुक प्राइस क्या है यहाँ पे 20 रुपीज़ है। तो यहाँ पे 2 बुक्स की प्राइस क्या हुई, तो यहाँ पे 40 रुपीज़, तो यहाँ पे 40 रुपीज़ एंड पैसे यहाँ पे कितने हुए 00। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। टॉय कार हमने एक खरीदी है, तो उसकी 35 रुपीज़ प्राइस है पर टॉय, तो यहाँ पे 35 रुपीज़ एंड 00 पैसे। देन आफ्टर 2 बुक्स खरीदी, तो पर बुक प्राइस 20 रुपीज़ है, बट 2 बुक्स की प्राइस है 40 रुपीज़। 20 + 20 = 40। देन आफ्टर हमने पेन खरीदी। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 पेन्स खरीदी है, हमने यहाँ पे 3 पेन खरीदी है, तो पर पेन प्राइस क्या है यहाँ पे, सो पर पेन यहाँ पे 5.50 रुपीज़, 5.50 रुपीज़, इट मीन्स 5 रुपी एंड 50 पैसे। तो यहाँ पे 3 पेन की प्राइस क्या होगी, सो 5.50 × 3, बिकॉज ऑफ 3 पेन्स हैं एंड प्राइस विल बी सेम। सो 5.50 × 3, so there is a 16.5 means 60.50. okay, so rupees 16.50 rupee and 50 पैसे। ओके, सो यहाँ पे 3 पेन की प्राइस है 16 रुपी एंड 50 पैसे। ओके, 3 पेन की प्राइस है 16 रुपी एंड 50 पैसे एंड पर पेंसिल प्राइस है 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 16.50 आंसर मिलेगा। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट, देन आफ्टर आपने यहाँ पे मास्क खरीदे, बहुत ही सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ओके, तो हमने यहाँ पे मास्क खरीदे, तो हमने यहाँ पे कितने मास्क खरीदे, तो हमने पूरी फैमिली के लिए खरीदे और हमारी फैमिली के अंदर 4 पर्सन है, तो हमने यहाँ पे 4 मास्क खरीदे एंड पर मास्क प्राइस यहाँ पे 10 रुपीज़ है। सो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, सो यहाँ पे टोटल 40 रुपीज़ हुआ। ओके, एंड पैसे कितने हुए, पैसे यहाँ पे 00 है, बिकॉज यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। देन आफ्टर हमें यहाँ पे नेक्स्ट प्राइस है वो पेंसिल की दिखानी है। ओके, सो पेंसिल हमने यहाँ पे 5 खरीदी एंड पर पेंसिल प्राइस इज 7.50 रुपीज़, पर पेंसिल प्राइस है वो 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो हमें यहाँ पे उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे 37 रुपी एंड 50 पैसा, तो रुपीज़ हमारे 37 एंड पैसे हमारे 50। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सारी प्राइसिंग्स आ चुकी है। ओके,
सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द टोटल। तो यहाँ पे रुपीज़ का टोटल और यहाँ पे पैसे का टोटल। ओके, 35, 40, 16, 40 एंड 37। तो यहाँ पे मैं उसका टोटल रुपीज़ के अंदर करूँगा, तो रुपीज़ के अंदर इसका टोटल क्या होगा। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे एडिशन रफ बुक के अंदर कर सकते हो। ओके, सो देयर इज अ प्राइस 168 रुपीज़ टोटल, ओनली रुपीज़ नॉट पैसे, एंड पैसे विल बी 100 पैसे, इट मीन्स 1 रुपी। ओके, सो ये हमारे प्राइसिंग्स हैं और ये हमारा कैश मेमो है। तो आपको ये कैश मेमो घर पे बनाना है। यहाँ पे आपके लिस्ट आएंगे, यहाँ पे मैंने अपने लिस्ट लिखे हुए हैं, तो आपको अपने लिस्ट बनाने हैं IPL एक्टिविटी के अंदर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें समझना। ओके, होता बहुत ही ईजी है बट हम उसको थोड़ा हार्डली ले लेते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस, वी आर एक्सप्लेनिंग प्रॉपरली एंड ईजीली। ओके, लेट्स रीड। 3 फ्रेंड्स वांटेड टू बाय अ क्रिकेट बैट एंड बॉल। यहाँ पे बैट है, यहाँ पे बाय मिस्टेक प्रिंट में प्रॉब्लम है, बैट एंड बॉल। ओके, 3 फ्रेंड्स हैं, उनको यहाँ पे बैट एंड बॉल खरीदने हैं। ओके, सो वो सभी अपने मनीज को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि किसके पास कितने रुपीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीना हैड 48 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बीना के पास 48.50 rupees है। Then after Raman had 55.50 rupees. So Raman had 55.50 rupees. Then after Venu had 38 rupees. So Venu had 38 rupees. So now the question is that how much money did they in all? It means इन सभी के पास टोटल कितने रुपीज़ हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं अगर टोटल फाइंड आउट करना है तो हमें एडिशन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मच मनी डिड दे इन ऑल, इन सभी के पास टोटल कितने रुपीज़ हैं। अगर ऐसा हमें बोला गया होता कि इसे कितने मनी लेफ्ट है या फिर कुछ और बोला गया होता तो हमें सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशंस करने होते, बट हमें यहाँ पे इन ऑल लिखा हुआ है, इट मीन्स हमें एडिशन करना है। तो हम एडिशन किस तरह से करेंगे, पहले तो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रुपीज़ एंड मनी, सॉरी रुपीज़ एंड पैसा, रुपीज़ एंड पैसा। ओके, नाउ जो रुपीज़ है उसे हम रुपीज़ के नीचे लिखेंगे 48, 55, 38. First of all there is a 50 paisa, again 50 paisa and 0, 0, and the plus sign is very important. Okay, now we have to add the rupees and paisa. First of all 0, then after 10, 5 plus 5 10, so it's 0 and 1, carry forward, 8 plus 1 9, 9 plus 5 14, 14 plus 8 there is a 22, so 22 का 2 and 2 again carry forward, 4 plus 2 there is a 6, 6 plus 5 there is a 11, 11 plus 3 14, so there is a 14, so there is a 142 rupees and 00 paisa is the answer. So they have all in 142 rupees. Okay, सो सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 2 and 3 आपको होमवर्क के अंदर करना है। आई जस्ट एक्सप्लेन यू, हरी बुक्ड अ रेलवे टिकट रुपीज़ 62.50, ही गेव अ 100 रुपीज़ नोट, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक विद द टिकट। ओके, सो आपको ये होमवर्क के अंदर करना है। टोटल 100 रुपीज़ में से उसने 62.50 रुपीज़ की टिकट खरीदी है। सो हाउ मच मनी वी विल गेट। ओके, सो ये आपको होमवर्क में करना है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, गीता एंड हर फ्रेंड्स वांट टू शॉपिंग, सी बॉट थिंग्स ऑफ द 58 रुपीज़, 37 and 22. गीता हैड a 100 rupee note, so how much money should she borrow from the friends to pay in bill? अगर उसे बिल पे करना है तो उसे कितने रुपीज़ बोरो करने पड़ेंगे। ओके, सो ये भी आपको होमवर्क के अंदर करना है। ओके,
Now question number 5, fill in the blanks. First of all, how many 1 rupees coin make rupees 11? So 1 rupees के कितने coin मिलके 11 rupees होंगे? Of course 11. So यहाँ पे 1 rupees के 11 coins होंगे, तब यहाँ पे 11 rupees हो जाएंगे. So the answer is 11 coins. Okay, now question number 2. How many 2 rupees coins make 22? It means there is a 11 2 rupees coin will be make a 22 rupees. So there is a 11 coins. Okay, यहाँ पर भी 11 coins होंगे 2 rupees के. यहाँ पे 1 rupees के coin थे, यहाँ पे 2 rupees के coin. Okay. Then after, how many 5 rupees coin make 35 rupees? So यहाँ पे 5 rupees के कितने coin मिलके 35 rupees create करेंगे? So यहाँ पे 5 coins मिलके 35 rupees create करेंगे. So there is a 5 coins. Okay? There is a 5 coins, 5 rupees. Okay? Then after, question number 3, 4, 5 and 6 आपको होमवर्क में करना है. Now we are going for the question number 7. How much is 6 2 rupees coin and 2 1 rupees coin is a question mark. So it means यहाँ पे 6 rupees के 2 coin है. 6 coin 2 rupees के हैं. Means 6 multiplied by 2 is equal to 12. Then after 2 1 rupees coin, it means 2 rupees. Okay, so 12 plus 2, there is a 14. So there is a rupees 14. यहाँ पे total 14 rupees हो जाएंगे. I again repeat, 6 2 rupees coin means 6 यहाँ पे 2 rupees के coin है, तो 2 multiply by 6, 6 2 are 12, 12 plus 2, there is a 14. Okay, then after, how much is 7 5 rupees coin? मतलब कि 5 7s are 35. Then after 10 1 rupees coin, it means 10 rupees. So 35 plus 10, there is a 45. Okay, now इसी तरह से आपको question number 9 and 10 भी homework के अंदर करना है. Okay, so is the question number 5. Now we are going for the next question number 6. Okay, so question number 6, use 1 rupee, 2 rupee or 5 rupee coins only to make the followings. Okay, अगर हमें यहाँ पे 4 rupees क्रिएट करना है तो हम किस तरह से rupees का यूज़ करेंगे? Only 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees. Okay, so first is a, अगर हमें 4 rupees क्रिएट करने हैं तो हमें यहाँ पे 2 rupees के 2 coins रखने पड़ेंगे. Okay, so 2 plus 2, there is a 4. Then after यहाँ पे 3 bubbles है, तो यहाँ पे हमें पहले तो 1 rupee, then after again 1 rupee and 2 rupee. 2 plus 2, there is a 4. Okay, तो यहाँ पे हमारे 4 rupees क्रिएट हो चुके हैं. Then after there is a 4 bubbles, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? So all 1 rupees coin. So यहाँ पर 1 rupees के coin हम यहाँ पे रखेंगे. So it's create a rupee 4. तो आई थिंक आपको आइडिया आ चुका होगा कि हमें करना क्या है. सो इसी तरह से आपको ये दोनों होमवर्क के अंदर कंप्लीट करने हैं. ओके, सो चैप्टर नंबर 11 हमारा मनी है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गेट द चैप्टर नंबर 12 डेटा हैंडलिंग. ओके.